Today, तो आज के दिन में we're going to look into Philippians chapter 4. हम फिलिपियो अध्याय 4 में आज हम देखेंगे. And I want you to turn your Bible if you have your Bible with you. अगर आपके पास बाइबल है आप खोल के देख सकते हैं इस समय. Philippians chapter 4 verse number 6. फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 4 उसका 6वां वचन में. There are a lot of young and old and middle-aged people. Most of them go through something very serious in their life. और इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जवान हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं जो बहुत से ऐसे कठिनाइयों से उन लोग गुजरते हैं. And especially in this day and age, a lot of young people go through this issue. और आज बहुत सारे लोग आज के ज़माने में जो जवान लोग हैं उन लोग इस सिचुएशन के द्वारा उन लोग चलते हैं. And so we are going to talk about the situation called depression. और आज इस परिस्थिति के बारे में हम आज बातचीत करेंगे डिप्रेशन के ऊपर. What is depression? वो जो खौफ है कि वो क्या है? When you are driving on the highway, you see big billboards with some celebrity's face on it saying, "I overcame depression." और बहुत सारे जब आप बाहर जाकर जब ड्राइव करके जब आ जाते हैं बहुत सारे ऐसे पर्दों में आप देखते हैं कि मैंने अतिक्रम किया है डिप्रेशन को. And there are so many billboards I have seen in the last 1 year, huge billboards on depressions. और लगातार एक साल से मैं बहुत सारे ऐसे बोर्ड को मैं देखते आ रहा हूँ जहाँ पे लोग वहाँ पे डिप्रेशन के ऊपर लिखते हैं. There are a lot of people that are going through today. और आज बहुत सारे लोग यही के द्वारा इस माध्यम के द्वारा लोग जा रहे हैं. And not just unbelievers, but also believers are going through depression nowadays. केवल अविश्वासी लोग नहीं लेकिन विश्वासी लोग भी इस परिस्थिति से उन लोग गुजर रहे हैं. Now it is not something that is happening among believers recently. ये केवल कुछ समय से पहले नहीं हुआ है. It has also been having even during the Bible times. लेकिन ये बाइबल के समय से भी वो होते आ रहे हैं. Depression. जो खौफ है. Why is this depression happening? क्यों ये जो डिप्रेशन है क्यों हो रहा है इस संसार में? And what is depression? और ये खौफ क्या है? Depression is something that you feel totally drowned with loneliness and a feeling that you are no good at all. और ऐसा आप उस समय आप फील करते हैं जैसे कि मैं पूरा डूब चुका हूँ, मेरा जीवन पूरा खत्म हो चुका है. You go so deep in your loneliness and you feel like you are nothing. और आप बहुत गंभीर अंदर चले जाकर आप सोचने लगते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. And your mind and your eyes, all that your mind and your eyes sees and says and thinks that you are the worst person. और आपके जो दिमाग है, आपके जो आंखें, आपकी जो सोच विचार है, आप सोचने लगते हैं कि मैं सबसे खराब इंसान हूँ. You feel afraid of the openness. और आप ये खुलेआम से आप डर जाते हैं. You feel afraid of people. आप लोगों से डर जाते हैं. You feel very uncomfortable in the midst of the people. आप उस समय लोगों के बीच में आप खुद को uncomfortable feel करते हैं. People get scared about certain situations. कुछ परिस्थितियों को लेकर उन लोग आज क्या करते हैं, डर जाते हैं. They are always worried about how they look and what they are. तो हमेशा ये सोचने लगते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ. They want to be in the dark. उन लोग बहुत ही अच्छा बनना चाहते They हैं. want to be alone. They want to be in the dark. उन लोग अंधेरे में रहना चाहते हैं. They want to be alone. और उन लोग अकेला रहना चाहते हैं. And there is so much that happens because of this depression. और ये बहुत ही ऐसा परिस्थिति होते हैं डिप्रेशन की वजह से. And we read in the Bible some of the men of God also went through depression. और हम बाइबल में पढ़ते हैं ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं जो डिप्रेशन के द्वारा उन लोग गए हैं. But the good news is, लेकिन जो अच्छा समाचार है, no matter what they went through, जैसा भी उन लोग परिस्थिति में गुजरे, God brought them out of it. परमेश्वर ने सभी को वहां से उठा के लेके आए. सभी को God gave them victory. परमेश्वर ने उन लोगों को विजेता प्राप्त दिया है. God recharged them in their life. परमेश्वर ने उन लोगों को वापस से सामर्थ दिया है. In the Bible, God tells us how you and I can overcome and avoid these depressions. परमेश्वर हमें वचन में सिखाता है कैसे हम इस डिप्रेशन को हम कैसे अतिक्रम करें. The problem today is many a times
people try to please others. आज समस्या क्या है, बहुत सारे लोगों को उन लोग प्रसन्नित करना चाहते हैं। And the question is, what will others think about me if I say this? लोग खुद को प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? What will others think about me if I do this? अगर मैं ये करूंगा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? What will others say about me if I don't do this and do that? अगर मैं वो नहीं करता हूँ या फिर वो करता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? And the thought in the mind is always about what will others think. और हमारे मन में वही सोच विचार रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? And others takes that position of God, and that's the reason you become a bondage in that thoughts of others. और लोग क्या करते हैं, लोग परमेश्वर का जगह को लेकर उन लोग दबाव में आ जाते हैं, बोझ में आ जाते हैं उन लोग। And you come under the bondage. और आप बॉन्डेज के अधीन आ जाते हैं। And you go deep into that. और आप उसके अंदर चले जाते हैं। Where you don't know how to come out of it. और जहां से आप बाहर भी नहीं आ सकते हैं। Because you are worried. क्योंकि आप बहुत दुखी है। You are worried about what other people will say. आप चिंतित है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? What they will think. उन लोग क्या सोचेंगे? What they will say. उन लोग क्या कहेंगे? And more than half of your life you tend to live for others. और आपके जो आधा जीवन है आप लोगों के लिए जीना चाहेंगे, ऐसा होता है। What will my society say? मेरे जो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? What will be my family say? मेरे परिवार मेरे बारे में क्या कहेंगे? What will be my friends think? मेरे मित्र लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? And this life goes on living for others' thoughts. और ये हमारे चलते जाता है हमारा जीवन लोगों के बारे में, वो लोग क्या Instead सोचेंगे? of pleasing God, we tend to please our society. क्या होता है, हम परमेश्वर को प्रसन्नित ना करते हुए हम लोगों को हम प्रसन्नित करते हैं। And we are always worried about what they will do. और हमेशा हम चिंतित रहते हैं उन लोग क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे। So trying to please others can cause depressions. और लोगों को अगर हम प्रसन्नित करना चाहेंगे तो हमारे जीवन में डिप्रेशन आ जाएंगे। Secondly, depression comes because of expectation. और दूसरी बात जो डिप्रेशन हम आशा के द्वारा अभी आते हैं। And we saw last Sunday, because of expectation, a lot of people are committing suicide today. और हम पिछले हफ्ते में हम देखें कि आशा की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। People have high expectation. लोगों के मन में बहुत ही ऊंची धारणाएं हैं। Because you tend to please the people more than pleasing God. क्योंकि आप लोगों को प्रसन्नित करना चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं। And because of that, they have higher expectations. इसलिए उन लोग के मन में बहुत ही ऊंची धारणाएं हैं, ऊंची विचार है। And not only they have higher expectation, you have higher expectation from yourself. केवल उन लोग के जीवन में नहीं, लेकिन आप लोगों के जीवन में भी वही है। You always concerned about how you look and how you look in what you wear. और हमेशा आप चिंतित रहते हैं, मैं अगर ये पहनूंगा तो मैं कैसा दिखूंगा। You always want praises from people. आप हमेशा चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहे। I wish they always praise me. मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे हमेशा अच्छा कहे। I wish they appreciate me. कि मुझे उन लोग अच्छा कहे। And that's the reason today even Christianity has become a world-pleasing pulpit. इसलिए आज मसीह के जीवन क्या हो गया, लोगों को प्रसन्नित करने का ऐसा जमाना आ गया। And even from the pulpit today, preachers are preaching things that will make people feel good. और पुलपित से भी लोग आजकल पास्टर लोग क्या प्रचार करते हैं ताकि लोग प्रसन्नित हो सके। Because the expectation of the world is hope he pleases me. क्योंकि आशाएं क्या है संसार में कि उन लोग शायद मेरे को अच्छा कहे। And so the preacher also wants to be appreciated, and so he starts pleasing the तो people. प्रचारक भी क्या चाहते हैं ताकि लोग मेरे बारे में अच्छा कहे, इसलिए वो अच्छा बातों को वो कहते हैं। And so the world wants appreciation all the time. तो संसार हमेशा अच्छे बातों को चाहते हैं। They want lies all the उन time. लोग हमेशा झूठ चीजों को चाहते हैं। And so today even from the pulpit, lies are being preached. और कलीसिया में भी पुलपित से जो झूठे हैं वो सब प्रचार किया जाता It's है। always about love. और ये हमेशा प्यार के बारे में होता It's है। always about how good you और ये are. हमेशा कितना अच्छे आप हैं, It's always about how successful you can become. कितना उन्नति आपके जीवन में प्राप्त होगा। And today very few churches will preach what the truth is. लेकिन आज बहुत से कम कलीसियाएं हैं जहाँ पे सत्य को प्रचार किया जाता है। Listening to too much of lies can cause depressions. अगर आप बहुत सारे झूठों को सुनेंगे तो आपको डिप्रेशन आएगी आपके जीवन में। Because when the next time you don't get sufficient lies to hear, then you go deep depressions. क्योंकि अगर
तो बाकी टाइम में क्या आप झूठी चीजों को आप सुन नहीं पाएंगे, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। Why is he no more telling good about me now? क्यों अभी वो मेरे बारे में अच्छा बातों को नहीं कह Why रहे are हैं? they not appreciating me anymore now? क्यों लोग मुझे अच्छा अच्छा बात नहीं कर रहे मेरे Oh, बारे में man, अभी? the last time they were speaking good about me. पिछले टाइम उन लोग मेरे बारे में अच्छा बात कही, Now they are not speaking good about me. लेकिन इस समय उन लोग मेरे बारे में अच्छा बात नहीं कर Maybe रहे I'm हैं। not good enough. शायद मैं अच्छा नहीं हूँ अभी, Maybe I'm not pleasing them. शायद मैं उन लोग को खुशी नहीं कर रहा हूँ, Maybe I don't look good now. शायद मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ अभी। And there is a lot of expectation from the world, and you expect expectation from the people. और वही उन लोग के जीवन में आशाएं आ जाती है ताकि लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा कहे। And when you don't get that, what you expect from people, you go into depression. और जो आप चाहते हैं लोगों से प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब आपको नहीं मिलते हैं तो उस समय आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, And then you feel sorry for yourself. उस समय आप बहुत दुखी हो जाते हैं। The third reason why you go through depression is because you feel sorry about yourself. तीसरी जो कारण है वो क्या है कि आप खुद को आप दुखी मतलब हो जाते हैं। You always use negative things in your mind आप and your हमेशा words. गलत चीजों को आप सोचते हैं हमेशा। I am not that good. मैं वो अच्छा नहीं हूँ, I'm good for nothing. मैं कुछ चीजों के लिए अच्छा I नहीं don't हूँ, look good. मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, I don't dress up well. मैं अच्छा पहनता नहीं हूँ, I'm not rich. मैं धनी नहीं हूँ, I'm very poor. मैं बहुत ही गरीब हूँ, I'm not good in studies. मैं स्टडी में भी अच्छा नहीं हूँ, I'm not better than my friend. मैं अपने मित्रों से अच्छा नहीं हूँ, Or she has better dress than mine. और उसके पास अच्छा ड्रेस है मेरे से भी His ज्यादा, bike and cars are better than उसकी mine. गाड़ी जो उसके बाइक है मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, She lives in a good वो house. अच्छे घर में रहती है, He is a wealthy person, और better वो than me. बहुत ही धनवान व्यक्ति है मेरे से Oh, ज्यादा। look at me. और मुझे देखो, I'm not that good. मैं वो अच्छा नहीं हूँ, My family is like that. मेरे परिवार वैसा है And I am like this. और मैं भी वैसा हूँ, Nobody loves me. कोई भी मुझे प्यार नहीं करता And है। you keep expecting from the world and you begin to feel sorry for और आप yourself. संसार से वही आशा को रखते हैं हमेशा, और आप खुद को आप दुखी हो जाते हैं। And when you feel sorry for yourself, जब आप खुद को माफ ऐसा हो जाते हैं, people tend to enjoy that. और लोग आपके ऊपर खुशियां मनाते हैं। Because when you feel sorry about yourself, जब आप खुद के ऊपर जब आप शोकित होते हैं, then we start judging and balancing our life with you. उस समय हम न्याय करना शुरू कर देते Oh, हैं। if he is feeling sorry about himself, then I must be better than अगर him. वो शोकित हो रहे तो मैं उससे भी ज्यादा अच्छा हो And सकता when हूँ। you come to understand that the other person is better than you, जब आप समझते हैं कि जो व्यक्ति मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, you go more and more deeper in your recession. और उस समय आप और भी गंभीर चले जाते हैं अंदर ही अंदर। The word recession is used in the economic capital, in the money matters. और ऐसा जो चीज है जो पैसों की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, The word recession. जो रिसेशन जो वर्ड है वो पैसों की चीजों में वो इस्तेमाल किया जाता है, When the money collapses. जब पैसा सब बिगड़ जाता है। And so depression means you go deep in your emptiness. जो डिप्रेशन क्या, आपके खालीपन में आप चले जाते हैं अंदर ही You अंदर। begin to feel empty about yourself. आप खुद को क्या खालीपन महसूस करते हैं, You begin to feel that you are nothing and nobody. और आप सोचने लगते हैं कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, Nobody is appreciating you and speaking good about कोई you. मेरे बारे में अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। You've been pleasing the world all the time. क्योंकि आप पूरे संसार को प्रसन्नित करने में लगे But you रहते हैं, cannot satisfy anybody. लेकिन आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते And you हैं, try to satisfy yourself with alcohol और आप खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं दारू से and through tobaccos और तंबाकू से and through drugs और ड्रग से and some kind of wickedness and evilness of this और world. कुछ दुष्टताओं से। But then you figure out that nothing is satisfying you. बाद में आपको पता चलता है कि कुछ भी मेरे को संतुष्ट नहीं दे रहे हैं, You see that you are more and more empty. और आप देखते हैं कि आप और भी ज्यादा खाली हैं, Nothing makes you happy anymore. कोई भी चीज आपको अभी खुश नहीं देती है, And that's why people go through depression. और इसीलिए लोग डिप्रेशन के द्वारा जाते हैं। Today I want to help you मैं आज आपको मदद करना चाहता हूँ how to avoid and overcome कैसे depression. हम इनकार करेंगे और कैसे हम अतिक्रम करेंगे डिप्रेशन को। First and foremost, you and I should understand we are on this earth because God put us here. पहले चीज हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ पे संसार में इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ पे रखा है। We are here in this situation because God has put us here. इस परिस्थिति में हम इसीलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस परिस्थिति में हमें डाला है। Now, I'm not talking about the situation of
breaking your leg or getting into some kind of wickedness, that's because of your stupidity. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पाँव टूट गए या फिर आप कुछ खराब परिस्थिति में, उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ. God put you on this earth because God has a purpose and a plan in life. परमेश्वर ने आपको इस संसार में रखा है क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर एक योजना को रखते हैं. But instead of knowing and understanding and pleasing God, you tend to please the others who don't care about you. लेकिन आप क्या करते हैं, लोगों को आप प्रसन्नित करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को नहीं. So first and foremost, know that you are here because of a purpose from God. तो पहली चीज तो आपको जानना चाहिए कि आप यहाँ पे इस संसार में इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का एक योजना है आपके जीवन में. And so your life should be spent to please the Lord. और आपके जीवन व्यतीत होना चाहिए ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्नित कर सके. Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ? God doesn't have great expectations from you. परमेश्वर आपसे कुछ बहुत ही बड़ी आशा नहीं रखते हैं. Because God knows your limit. क्योंकि परमेश्वर आपकी लिमिट को जानते हैं. God knows how much you can push yourself into. परमेश्वर जानता है कि ये कितना आपके अपने आप को धक्का दे सकते हैं. He is your creator. वो आपकी सृष्टि करता है. He knows your limit. वो आपकी लिमिट को जानता है. God is not expecting much from you. परमेश्वर आपसे कुछ भी बड़ी आशा को नहीं रख रहे हैं. And so if you would understand this and live for the Lord the rest of your life, अगर आप इसको समझ कर अगर परमेश्वर के लिए जीते हैं पूरे then a जीवन, lot of things will fall into perspective. तो पूरे जो चीजें हैं आपके जीवन में हो जाएंगे. When you think you are the only one left to be and who is the best in this world, अगर आप सोच लेते कि पूरे संसार में मैं सबसे महान हूँ, then that will be a great problem in your life. तो ये आपके जीवन में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो There जाएगी. were some people in the Bible who thought they were the only ones who worship God. बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो अपने आप को सोचते हैं कि हम ही केवल परमेश्वर की आराधना करते Later हैं. on, he found himself under depression. और बाद में उसको पता लगा कि वो डिप्रेशन में जा चुके हैं. Today, I want to share with you from Philippians chapter 4, verse number 6. और मैं आप सभी से आज फिलिपियों अध्याय 4 से मैं आज आपसे बातचीत करना चाहूंगा. Philippians chapter 4, verse number 6. फिलिपियों अध्याय 4 छठवां वचन. First and foremost, what God, I'm not talking to the world today, I'm talking to God's people today. मैं आज संसार के लोगों से बातचीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सभी से बातचीत कर रहा हूं. I'm talking to those people who believe in the Lord God of the Bible. मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो बाइबल की परमेश्वर को विश्वास करते हैं. And even Christians can go through depressions. इवन जो मसीह लोग हैं उन लोग भी डिप्रेशन के द्वारा जा सकते हैं. If our focus is upon the world and upon everything else other than God, then you can go through depression. अगर हमारी नजर हमारे दृष्टि संसार में है तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं. But there is a good news for you and for me. लेकिन हम सभी के लिए एक अच्छा सुसमाचार है. You can take medicines, you can take alcohol, you can take all those things. आप दवा ले सकते हैं, आप दारू ले सकते हैं, But they will only push you more and more deeper. लेकिन उन सब चीजें आपको केवल गंभीर में लेके जाएंगे. Now, if the doctor has prescribed you some tablets, I'm not saying just go and throw it out. और अगर डॉक्टर ने आपको कुछ दवा लिख दिया तो आपको उसको जाके फेंकना नहीं है. I'm telling you to take it to the Lord. मैं ये कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर में उसको लेके जाओ. And God is able to help you through this journey. और परमेश्वर आपको मदद करेगा इस जर्नी के द्वारा. Verse number 6 says, और छठवां वचन में कहता है, be careful for nothing. किसी भी बात का चिंता मत करो. First and foremost, the first thing in our life to overcome and avoid depression is don't worry, be happy. और हमारे जीवन में पहली जो चीज है, अगर हम अतिक्रम करना चाहते हैं डिप्रेशन को, तो हमें क्या होना चाहिए? हमें चिंतित नहीं होना चाहिए. Don't worry, be happy. और हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए. Everybody say after me. और सभी लोग मेरे पीछे कहिए, Don't worry, be happy. What was that advertised? When Surf Excel, right? He got it from the Bible. बाइबल से उसको प्राप्त हुआ है. Don't worry, be happy. चिंतित मत हो, लेकिन खुशी रहो. What Surf Excel does? सर्फ एक्सेल क्या करता है? He washes the dirt out of your और clothes. पूरे गंदगी को धो देता है. What Jesus does? यीशु मसीह क्या करता है? He washes all your sorrow out of your और life. हमारे हर एक दुख तकलीफ को धो देता है. Don't worry, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं be है, happy. लेकिन खुश रहो. Because in verse number 4, क्योंकि वचन 4 में the Bible परमेश्वर के says, वचन कहता है, rejoice in the Lord always. प्रभु में सदा आनंदित रहो. And again I say और फिर rejoice. से मैं कहता हूँ आनंदित रहो. I want you to know मैं आपको चाहता हूँ that when this letter was written by Apostle Paul, जब ये खत पौलुस के द्वारा लिखा गया था, he was not writing out of sitting in a palace. वो पैलेस में बैठकर वो ये खत नहीं लिख रहा था. He was not writing by wearing the best of clothes and sitting on a comfy bed. और सबसे अच्छा कपड़ा को पहन के कुर्सी में बैठ के वो नहीं लिख रहे थे. Apostle Paul was writing this epistle लेकिन पौलुस ये खत को लिख रहा था under the inspiration of the Holy पवित्र Spirit, आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, sitting in a dirty, stinking, rotten
prison cell. और ऐसा गंदगी इस जगह में जहाँ पे पूरा गंदगी है, पूरा बदबू है, जेल में बैठकर वो लिख रहे थे. He was put in the prison cell for preaching the gospel. परमेश्वर की वचन को प्रचार करने के लिए उसको जेल में डाला गया था. And so he was put in the prison. और उसको जेल में डाला गया था. And if you and I were put in the prison, what would you do? अगर हमें भी जेल में डाला गया तो हम क्या करेंगे? Would you say, oh no, I will not go to church from next Sunday? क्या कहेंगे, अगले संडे से मैं कलीसिया को नहीं जाऊंगा. Because I went to church, they put me in the jail. मैंने कलीसिया को गया इसलिए मुझे जेल में डाल दिया है. Because I went to Jesus, they beat me up and put me in jail. मैंने यीशु मसीह के पास गया, उन लोग मुझे मार के मुझे जेल में डाल I will दिया. not obey Jesus anymore. मैं अभी यीशु मसीह की आज्ञा को पालन नहीं Look करूंगा. what happened following Jesus. देखो यीशु मसीह को अनुसरण करना क्या हुआ मेरा. Is that what you're going to complain and murmur about? क्या वही कुरकुराएंगे हमेशा? Apostle Paul was put in the jail for preaching the gospel. पौलुस को जेल में डाला गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया. And Apostle Paul being in the prison cell, और पौलुस जेल में रहने के द्वारा he says, rejoice in the Lord always. और वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो. And again I say rejoice. फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो. He had an opportunity to go through depression. और उसके पास भी वो मौका हो सकता था जहाँ पे वो डिप्रेशन में जा But सके. he started celebrating Christ. लेकिन उसने यीशु मसीह को धन्यवाद He दिया started rejoicing in the Lord. और वो यीशु मसीह में आनंदित होना शुरू He किया. said, if I'm in the jail, I will still rejoice in the और Lord. उसने कहा कि अगर मैं जेल में भी रहूं मैं फिर भी If they परमेश्वर are में going आनंदित to रहूंगा. persecute me for Christ's name, I'm still going to rejoice in the अगर वो Lord. ताड़ना देंगे फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा. I am not going to allow my situation to put me in depression. मेरी परिस्थिति को मैं अनुमति नहीं दूंगा ताकि मुझे डिप्रेशन में लेके जाए. I'm the child of मैं God. परमेश्वर की संतान हूँ. I'm washed by the blood of Christ. मुझे परमेश्वर की लहू से धो दिया गया I है. have the word of मेरे पास God. परमेश्वर के वचन है. I'm not going to allow sorrow to overcome me, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे ऊपर ओवरकम करे दुख, but I'm going to overcome my sorrow. लेकिन मेरे दुखी को मैं अतिक्रम करूंगा. I made a decision to rejoice in the Lord. मैंने ऐसा डिसीजन लिया था कि मैं परमेश्वर में आनंदित रहूं. I am not going to allow the sorrow to rejoice over me, मेरी दुखी को मेरे ऊपर मैं अनुमति नहीं दूंगा. but I'm going to rejoice in the Lord always. लेकिन मैं परमेश्वर में सदा आनंदित रहूंगा. Yes, I'm going through these problems. हाँ, मैं इस परिस्थिति में जा रहा हूँ. Yes, you may be having financial शायद problems. आपके जीवन में दिक्कतें होंगे. Yes, you might have family issues. आपके परिवार के प्रॉब्लम होंगे. Yes, your children may be not walking the way they want to walk. शायद आपके बच्चे लोग सही मार्ग में नहीं चल रहे हैं. Or you may be having all kind of problems in your life. आपके हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं. But being sorrowful over the problems will never solve your problems. लेकिन समस्याओं के ऊपर दुखी होना केवल आपके जीवन की कभी समस्या नहीं But होगी. having faith in God, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने that के द्वारा God is able to make me overcome my कि problems, परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा ताकि मैं अतिक्रम कर सकूं. will suddenly make God to help you to overcome that problem. परमेश्वर उस समय आपको मदद करेगा ताकि आप अतिक्रम कर सके. Bible says, परमेश्वर के वचन कहता है without faith, बिना विश्वास से it's impossible to please ये God. मुमकिन है हम ताकि परमेश्वर को प्रसन्नित कर सके. No matter what big storm and rock may come up against your life, बड़ी चट्टान या फिर आंधी आपके जीवन में आए, but if your eyes is focused upon the Lord, लेकिन अगर आपकी नजरें यीशु मसीह के ऊपर and है you say, I don't know what's going on in my और life, आप कहते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, but I'm just going to believe in the Lord लेकिन मैं यीशु मसीह को विश्वास करूंगा that it's going to be fine soon, और वही मुझे जल्दी मिलने वाला है. that God is controlling my life. यीशु मसीह मेरे जीवन कंट्रोल कर रहा है. Yes, the storm is hitting me hard. हाँ, जो आंधी तूफान है मुझे बहुत ही My हर्ट कर boat रहा है. is shaking मेरी जो down. नाव है बहुत ही हिल रहा है, But Jesus is in my life. लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में है. Jesus is sailing with me in my boat. यीशु मसीह मेरे साथ बैठा हुआ है And if Jesus is sailing in my और boat, यीशु मसीह मेरे साथ है. my boat will not be मेरे drowned. जो नाव है वो डूबेगा नहीं. He is with वो me. मेरे साथ है. And he said, I will take you on the other side. यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें दूसरे साइड में लेके जाऊंगा. My dear friend, if Jesus said that to you, मेरे प्रिय, अगर यीशु मसीह आपके साथ बैठा हुआ है he is going to see you through. तो आपको बाहर लेके भी जाएगा. Be careful for nothing. कुछ चीजों के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं. Amen. Don't worry. आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं. Be happy. हमेशा खुश रहिए Look at your neighbor and say, और आपकी परिस्थिति को देखकर कहिए don't worry. आप चिंतित होने की जरूरत Be नहीं. happy. खुश रहो. Come on, look at your neighbor and say. परिस्थिति को देखकर कहो. See, when you say to others to be happy, you become happy. देखो, आप जब लोगों को कहते हैं लोग खुश हो जाते हैं. In this world, there's no use of being, holding on to your head and just crying all the time. संसार में कोई फायदा नहीं आपके सर में हाथ को रख के रोते हुए. If you are only living in sorrow अगर आप केवल दुख में जी रहे हैं and feeling sorry about yourself all the और time हमेशा आपके ऊपर शौकित होते हैं and trying to please others all the और time लोगों को आप प्रसन्नित करना चाहते and हैं expecting others to speak only good about और लोगों you, से आप आशा करें लोग मेरे बारे में अच्छा all कहेंगे, that you are going to do is going to be in sorrow. आप क्या हो जाएंगे, आपके जीवन में दुखी हो जाएंगे. But you need to find your
promise in the Word of God. लेकिन आपकी वादों को परमेश्वर की वचन में आपको ढूंढना चाहिए। You need to find your joy in the Word of कि God. आनंद को परमेश्वर के वचन में ढूंढना चाहिए। You need to find your peace in the Word of कि God. शांति को परमेश्वर के वचन में ढूंढना चाहिए। Alcohol will not give you peace. जो दारू है आपको शांति नहीं देगा। Cigarettes will not give you peace. सिगरेट आपको शांति नहीं देगा। Drugs will not give you peace. ड्रग्स आपको शांति नहीं देगा। And all this wicked lifestyle will not give you peace. जो खराब जिंदगी आपको शांति नहीं देगा। But it will destroy your life piece by piece. लेकिन आपके जीवन को नष्ट कर देगा। But if you want joy, लेकिन अगर आप आनंद चाहते if you हैं, want to overcome and avoid depression, अगर आप अतिक्रम करना चाहते हैं डिप्रेशन you को, will have to make a decision today. आपको आज एक डिसीजन लेना चाहिए आपके जीवन में। It is a commitment that you make towards yourself. और ये एक ऐसा कमिटमेंट जो आप खुद में जीवन में बनाते हैं। And you make a covenant with और God. आप यीशु मसीह के नया वाचा बनाते Oh हैं। God, हे परमेश्वर, I am not going to allow sorrow to overcome मैं me. मेरे जीवन में दुखी को मैं अतिक्रम करना नहीं दूंगा। I'm going to rejoice in you. मैं आप में आनंदित मनाऊंगा। I'm not going to be anxious about anything. मैं किसी चीजों के बारे में मैं व्याकुल नहीं होऊंगा। Because my dear friend, history proves लेकिन मेरे प्रिय जो इतिहास बताती for the है, last 7,000 years, केवल 17 साल से आगे not one man केवल ऐसा भी व्यक्ति नहीं who lived in sorrow जो ऐसा व्यक्ति जो दुखी में जिया all the time हमेशा and being anxious about everything all the और time हमेशा शोकित होकर was able to change anything for good. और अपने जीवन को बदल नहीं सका। No man was able to change anything. कोई for भी good. अपने जीवन को बदल नहीं सका, In fact, he became more and more worse. लेकिन वो और भी ज्यादा खराब होने लगा। But Bible proves लेकिन परमेश्वर की वचन हमें बताती है that when your eyes is focused upon the कि Lord, आपकी नजरें यीशु मसीह के ऊपर हैं He changes your life और आपके completely. जीवन को पूरे तरीके से बदल देता है। So be careful for nothing. तो कुछ चीजों के ऊपर चिंतित मत होइए। I don't know what will happen with my children. मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। I don't know what's going to happen about my marriage. मुझे नहीं मालूम मेरे शादी का क्या होगा। I don't know what's going to happen about my life, मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन का क्या होगा। my job, मेरे जो काम, my family, मेरे परिवार, my this and my that. मेरे ये और वो। Don't worry. आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं। Be happy. हमेशा खुश रहिए। Are you in Christ? क्या आप मसीह में हैं? Is Christ sufficient for you? क्या यीशु मसीह आपके लिए जरूर Find your sufficiency in Christ. आपकी जरूरतमंद को आप यीशु मसीह में आप When ढूंढिए। you make a decision जब आप एक डिसीजन बनाते हैं आपके जीवन में, that I am not going to be worried anymore about anything. मैं कुछ चीजों के ऊपर मैं अभी चिंतित नहीं होऊंगा। Tomorrow something bad is going to happen in your life. कल को शायद आपके जीवन में कुछ खराब होंगे। If you're going to sit down अगर आप नीचे बैठते हैं and only worry about the bad that is going to come, और जो खराब आने वाले हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, it's not going to change the situation. वो परिस्थिति को बदल नहीं देगा। But if you keep doing what you're supposed to do, the right thing, लेकिन जो चीजों को आपको करना चाहिए उसको आप करते रहते हैं, keep your eyes upon the Lord, आपकी आंखों को यीशु मसीह को ऊपर रखते हैं, the Lord is able to change your situation. यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। If you put your clothes outside, simple illustration. एक उदाहरण देना चाहूंगा। If you know it's a rainy season अभी ये बारिश की मौसम है and you wash your clothes और आपके कपड़े को आप धोते हैं and you see the sun out, और आप देखते हैं जो सूरज वो नहीं है, and so you took all the clothes after washing और उस समय आप वो धोने के बाद बाहर लेके जाते हैं and you put outside, और आप उस समय बाहर लेके and you're जाते हैं keeping the clothes for dry now, और अभी आप कपड़े को सुखाने के लिए रखते हैं and the sun is good, smiling at you. और इस समय सूरज बहुत ही अच्छा है The clothes are smiling at you और जो कपड़े हैं आपके ऊपर हंस रहे हैं because they are drying up better. क्योंकि वो सूख रहे हैं कपड़े, And suddenly और अचानक से the cloud starts becoming darker, उस समय जो बादल अंधेरा छा जाते हैं and you see the thundering, और उस समय आप गर्जन घोर सुनते हैं and you sit in the chair. और आप चेयर में बैठते हैं। Oh, it's gonna rain. आप सोचते हैं यार ये देखो बारिश होने वाली है, Oh, I don't know what is going to happen. मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है अभी, Oh, my clothes were almost dry. और देखो मेरे कपड़े सूखने वाले थे, It's going to rain and become wet again. अभी बारिश होने वाला है, अभी वापस Now भीग when जाएंगे। will my clothes get dried up again? अभी मेरा जो कपड़े कब सूखेंगे? You know what you're doing? क्या आपको पता है क्या आप कर रहे हैं उस समय? You're sitting and worrying on something that you cannot change. आप बैठकर आप वही सोच रहे हैं जो आप बदल नहीं सकते But हैं, what do you have to do? लेकिन उस समय आपको क्या करना है? Go out, बाहर जाओ get the clothes in और कपड़े को अंदर लेके आओ before it rains. और बारिश होने से पहले You're doing the right thing at the right time. आप सही चीजों को कर रहे हैं सही समय में, That is what avoiding depression is all about. और उसी प्रकार से हम इनकार कर सकते हैं डिप्रेशन को। But if you're going to sit down लेकिन अगर आप बस बैठे रहते and हैं just worried what will happen if the rain और आप comes, चिंतित होते हैं कि अगर बारिश आएगी तो क्या होगा, and what will happen if my clothes get wet, अगर क्या होगा अगर मेरे कपड़े भीग जाएंगे तो, that is foolishness. और वो एक बुर्बकतापन है। Before it happens, और ये होने से पहले you do the right thing at the और आप right time. सही चीजों को करें सही समय पे। Now you missed it.
नहीं तो आप खो जाएंगे। And the rain came और बारिश आ जाते and your clothes are wet. और आपके जो कपड़े भीग जाते हैं। Now you sit अभी इस समय आप बैठ जाते and हैं you start complaining and murmuring. और उस समय आप कुरकुराने लगते हैं। Oh, my clothes were all dry. देखो मेरे जो कपड़े सब सूख रहे थे, Oh, it's become wet now. अभी पूरा भीग गया। Oh, what will happen? अभी क्या होगा? My clothes will smell. मेरे जो कपड़े वो बदबू Now आएगा। you can sit and be sorrowful over it, शायद बैठकर आप दुखी हो सकते हैं, or you can just put a rope inside your house, नहीं तो आप रस्सी लगा सकते हैं घर के अंदर start your fan, और आपकी फैन को चालू करिए and put the clothes on. और वहाँ पे कपड़े को लगा दीजिए And it will take some extra time for the clothes to और be कुछ dry. समय लगेंगे ड्राई सूखने के लिए। Amen. आमीन। You and I have to make a decision not to worry but to be happy. हमें एक डिसीजन लेना है ताकि हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं, लेकिन खुश होना है। This is just a practical lesson. और यह केवल हमारे दैनंदिन जीवन की एक लेसन है। This may not be the biggest, best illustration, शायद बहुत ही बड़ी उदाहरण नहीं होंगे but शायद, this is something that you and I go through every time in rainy season. लेकिन बारिश के मौसम में हम ये हमारे परिस्थिति आती है हमारे जीवन में। You have to make a decision. I'm not going to be worried about anything. आपको एक डिसीजन लेना आपके जीवन में कि मुझे कोई चीजों के ऊपर चिंतित नहीं होना है, Because by worrying, I cannot change situations. क्योंकि अगर मैं चिंतित होते रहूंगा तो मैं परिस्थिति को मैं बदल नहीं सकता हूँ। God is in control of my life. परमेश्वर मेरे जीवन में कंट्रोल करके रखा है I'm just going to do the right thing at the right time. और सही समय में सही चीजों को मैं करते रहूंगा। God will take care of the rest of the things. सभी चीजों को परमेश्वर रखवाली करेगा। Unnecessarily sitting and crying over the milk that is spilled is not going to make your milk pure again. जो दूध खराब हो चुका है वो आपको बस चिंतित होके वो वापस से ठीक नहीं हो जाएगा। So the first thing is, dear friend, don't worry, be happy. तो पहली जो चीज है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, लेकिन खुश रहिए। Be careful for nothing. कुछ भी चीजों के लिए चिंतित मत होइए। Have you seen the birds of the air? क्या आपने पक्षियों को देखा? Every morning they take the pickaxe. हर एक सुबह को हम पिकैक्स लेते हैं। Not hum, bakshi. पक्षी They take the pickaxe उन लोग पिकैक्स को लेते हैं and a bag full of grain. और कुछ चीजों को धान को लेते हैं And the bird goes to the field and digs and puts the grain. और पक्षी लोग बाहर खेत में जाके उन लोग लगाते हैं So the tree will become big ताकि जो पेड़ है वो बड़े हो सके and give grains and fruits. And और फल दे सके। does the bird do that? क्या पक्षी लोग ये करते हैं? No. Yes or no? No. नहीं करते हैं, But yet the Father in heaven feeds the birds. लेकिन फिर भी स्वर्ग के पिता उन लोगों को खिलाते हैं। Amen. आमीन। And God says, how much more important are you to me than the birds of the air? और परमेश्वर कहता है कितना आप मेरे लिए जरूरतमंद हो पक्षी से भी ज्यादा। You see the grass outside? क्या आपने घासों को देखा बाहर? They are green color, right? हरियाली है। Every morning they get up हर सुबह को उन लोग उठते हैं and they shout, और उन लोग चिल्लाते हैं, Jabin, get up from sleep. जेविन उठो, Rajiv, get up from sleep. राजीव उठो तुम भी, It's 11 o'clock. देखो 11 बज चुका I है need water. और मुझे पानी की जरूरत है। They wake up at 12 o'clock. और उन लोग 12 बजे को उठ जाते हैं। And so the grass is never shouting, और जो घास है कभी भी चिल्लाते नहीं है, but God is watering. लेकिन परमेश्वर उन लोगों को पानी दे रहे हैं Or these people go and water it. और हम लोग जाकर पानी देते हैं। The grass is never shouting and worrying about, oh, what is going to happen. घास कभी चिल्ला के नहीं कहते कि मुझे क्या होगा, But look at the grass, they are green in color. लेकिन घास को देखो कितना हरियाली है। And God says, if the grass is not worried, how much more I will take care of you. और परमेश्वर कहता है अगर देखो घास वगैरह कुछ चिंतित नहीं है तो देखो तुम्हारा मैं कितना चिंता करता हूँ। Amen. आमीन। We need to start thinking Bible ways. और हमें परमेश्वर की वचन के अनुसार हमें चिंतित होने की जरूरत है। Don't worry, be happy. और आपको चिंतित होने की जरूरत है, खुशी होइए। Everybody say, don't worry, be happy. So be careful for nothing. तो कुछ चीजों के लिए आप चिंता मत करो। Honestly, dear friends, देखो मेरे प्रियो, depression is something that is come because of the devil. जो डिप्रेशन है वो क्या है, वो शैतान की ओर से आते हैं And you give yourself to that. और आप अपने जीवन को वहाँ पे दे देते हैं। Even Christians. जो मसीह लोग भी, It's the evil one who brings this. और ये शैतान जो लाते हैं आपके He जीवन में, wants to take you to that level. और वो चाहते हैं कि ताकि आप उस जगह में जा सके। But Christians who understand the biblical truth, लेकिन जो मसीह लोग जो परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, that I'm not going to be worried about anything. मैं किसी चीज के ऊपर चिंतित नहीं You know होऊंगा। what you do? आपको पता है कि आप करते हैं उस You समय destroy the plans of the evil one. आप शैतान की जो हर एक कल्पना है उसको आप नष्ट कर देते हैं। Be careful for nothing, किसी बात को चिंतित मत होइए, but in everything, लेकिन सब चीजों में by prayer प्रार्थना के द्वारा and supplication, और विनती के द्वारा with thanksgiving, और धन्यवाद के द्वारा let your request be made known unto और God. परमेश्वर के समूह उपस्थित किए जाए। You know what the Bible says? क्या आपको पता है परमेश्वर की वचन क्या कहता First है? and foremost, पहली जो चीज है,
don't worry about these people. और ये लोगों के बारे में आप चिंतित मत होइए। What they will say and what they will do. उन लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे उन लोग? Oh, I am so bad. What are the world going to tell about me about मैं now? बहुत ही खराब हूँ, संसार लोग अभी मेरे बारे में क्या कहेंगे? If you have done something wrong, go to God and fix it up. अगर आपने कुछ गलत किए हैं तो परमेश्वर के समूह जाए और आप क्षमा मांगे Ask the Lord to forgive your और sin परमेश्वर से आप मांगे ताकि आप क्षमा करें and believe that God has और forgiven you. विश्वास करें कि यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है। Don't worry about the world. और संसार के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं। Yesterday I was reading a book, एक किताब पढ़ा था मैं कल, and in that book it is written, और वह किताब में ऐसा लिखा है, at the, you know, if you are living all your life for the world, अगर आप पूरे जीवन संसार के लिए जीते हैं, when you die, जब मरते हैं, very less people cry for you. बहुत से कम लोग आपके लिए रोएंगे। The whole world is not going to cry for you. पूरे जो संसार आपके लिए नहीं रोएंगे। This village, ये जो गांव है, we love our village, हमारे गांव को हम प्यार करते हैं, right? And we are all like, what the people will say about me? और हम क्या सोचते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या What सोचेंगे, they talk about my dressing? मेरे ड्रेसिंग के बारे में क्या सोचेंगे उन लोग, Oh, what they will going to talk about me about other things? और बाकी चीजों के बारे में उन लोग क्या सोचेंगे। And if you are worried about that, अगर आप चिंतित होते हैं when you die, जब आप मरते हैं, you know how many people will cry? क्या आपको पता है कितने लोग आपके लिए रोएंगे? After you die, many will come. Oh, he was very good. मरने के बाद बहुत से लोग आके कहेंगे हाँ बहुत ही अच्छा था, But out of 2,000 people, there will be 20 people who will cry. लेकिन 2000 लोग में से 20 लोग शायद रोएंगे आपके Only लिए, 20 people will cry. केवल 20 लोग ही आपके लिए रोएंगे, The whole village is not going to पूरे cry. जो गांव है आपके लिए नहीं रोएंगे। So we don't have to live for the world. तो हमें संसार के लिए नहीं जीना है, We have to live for the Lord. हमें परमेश्वर के लिए जीना है। Amen. आमीन। So don't worry about what people are going to say and do to you. तो चिंतित होने की जरूरत नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या Be करेंगे। careful for nothing. किसी भी बात की भी चिंतित मत होइए, Live bindas life in Christ. पूरे बिंदास से आप जी सकते हैं यीशु Don't मसीह worry में। about your finance. आपके धन के बारे में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं। God gave you a job. Do it with all your heart. परमेश्वर ने आपको कार्य दिया, आप पूरे हृदय से कार्य करिए, And be happy with what you get. और जो आप पाते हैं वहीं पे आप संतुष्ट हो जाइए। What you got to wear it and live for the Lord. जो आपको पहनने के लिए मिला है वही पहन के आप परमेश्वर के लिए जिए, Wash, press and wear it. और धोइए और फ्रेश होकर आप पहनिए। Don't worry about the world. आप संसार के बारे में चिंतित मत होइए, The world is not going to buy and give. संसार आपके लिए खरीद के नहीं देंगे। They may talk one or two, शायद उन लोग एक दो बात कहेंगे, but it's not good. You are not supposed to allow them to change your mentality. आपको उन लोगों को अनुमति नहीं देना चाहिए कि आपकी मंडली को उन लोग चेंज करें। Be careful for nothing. किसी बात का चिंतित मत होइए, But what you and I should do, लेकिन हमें क्या करना है? when any bad situations arise, जब आपके जीवन में गलत परिस्थिति हो जाती when है, any kind of issues arise that is really putting you into problems, जब आपके जीवन में समस्याएं ऐसे आ जाती हैं जहाँ पे आप समस्या में पड़ जाते हैं, first thing, पहली जो चीज है you need to pray. आपको उस समय प्रार्थना करना है। You need to pray. आपको प्रार्थना करना है। When you pray, you are showing two things. जब आप प्रार्थना करते हैं दो चीजों को आप दिखाते हैं। First thing, you are showing that you trust God. पहली जो चीज है आप दिखाते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, Secondly, God gets into action. और दूसरी बात जो परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। When God's people pray, God is always at action. जब परमेश्वर के जन लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कार्य करता है। Even when we think that God is not hearing, God is always hearing His children's voice. अगर भी हम नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहे हैं तो फिर भी परमेश्वर सुन रहा है। Even when you think that God is not acting, He is always already working in to change your life. अगर भी आप सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर रहा है फिर लेकिन परमेश्वर कार्य को कर रहा है। What God is doing is not your matter to look into. क्या परमेश्वर कर रहा है वो आपकी वो कुछ काम का नहीं है You देखने will के not लिए, able to see that. आप उसको नहीं देख पाएंगे, But God is working. लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा है। It is not your problem. ये आपकी समस्या नहीं है, It is God's ये problem. परमेश्वर का समस्या है। Your thing is, और आपकी जो चीज है you should not be worried. आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। When worry problems comes, जब समस्याएं आपके जीवन में आती है you just pray. आप केवल प्रार्थना करो And you say, Lord, और आप कहो प्रभु I don't know how I'm going to overcome this. मुझे नहीं मालूम मैं इस चीजों को कैसे अतिक्रम करूं, This problems in my life. जो समस्याएं मेरे जीवन में है, This problems about the people in my life. लोगों के बारे में जो मेरे जीवन में समस्याएं हैं, This problem about my financial, what am I going to do tomorrow? मेरे जो धन के बारे में मेरे समस्याएं मैं क्या करूंगा कल को, God, the job that you gave me, और जो परमेश्वर ने मेरे को मुझे काम दिया है, help me to work. मुझे मदद करो ताकि मैं कार्य कर And oh सकूं। God, give me promotions. और प्रभु जी मुझे सामर्थ्य ताकि मैं प्रमोशन मुझे And प्राप्त oh हो God, सके, help me to make extra money. और मुझे सामर्थ्य ताकि मैं एक्स्ट्रा पैसे को कमा सकूं, So I may able to deal with my financial difficulties. ताकि मेरे जो आर्थिक समस्या है उससे मैं डील कर सकूं। Oh God, raise up people in my life मेरे जीवन में लोगों को आप खड़ा करिए प्रभु जी, who is able to know my situation and support जो me. मेरी परिस्थिति को जान सके और मुझे सपोर्ट कर सके। Prayer.
आप प्रार्थना करो। When you pray, जब आप प्रार्थना करते you're हैं, talking to God. आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। And when you talk to God, जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, God is always hearing your prayer. परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनता Now है। it depends upon which God you're talking to. लेकिन ये उसके ऊपर निर्धारित करता है कि कौन से परमेश्वर से आप प्रार्थना कर If रहे you're हैं। talking to the God that you made with your hands, लेकिन उस भगवान से अगर आप प्रार्थना करें जो जिस भगवान को आपने हाथ से बनाया He है, is not hearing. वो आपका नहीं सुन रहे हैं। But if you're talking to the God that made you, लेकिन उस परमेश्वर से अगर आप बातचीत करें जो आपको बनाया है, He's always hearing. वो हमेशा आपको सुनते हैं। Jesus made you. यीशु मसीह ने आपको बनाया है। You cannot make Jesus. आप यीशु मसीह को बना नहीं सकते हैं। You need to talk to Jesus. आपको यीशु से बात करना है। My dear friend, the Bible says, मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन कहता है, when you talk to God जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं and you pour out your heart और आपके हृदय को आप डाल देते हैं परमेश्वर में and give thanks to Him, और परमेश्वर को आप धन्यवाद देंगे, which means इसका मतलब you're not going to worry about anything आप from किसी- today onwards. आज के बाद आपको किसी चीज की चिंतित होने की जरूरत नहीं है। I know situations will come, मुझे पता है परिस्थिति आएंगे हमारे जीवन में, problems will come. समस्याएं आएंगी हमारे जीवन में, There is a very major things that I'm going through in my life right now. और एक बहुत ही बड़ी चीज है जो मैं मेरे जीवन के द्वारा जा रहा हूँ And मैं, I will not tell this openly और मैं खुलेआम ये नहीं कहूंगा because it's going to on the internet. क्योंकि ये इंटरनेट में जा रहा है ऑनलाइन, But it's something related to the ministry difficulty. लेकिन ये मिनिस्ट्री के ऊपर है। And this I'm struggling and suffering for the last 2 years. मैं बहुत ही दुख को उठा रहा हूँ, मैं समस्याएं आ रही है मेरे And जीवन now I में, really don't know how to pray about this और situation. मुझे अब इस समय नहीं मालूम कि मुझे कैसे प्रार्थना करना चाहिए इस I परिस्थिति really के ऊपर। don't know what to do about it. मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं। This is really the most biggest obstacle and the biggest heartache of my life. और ये बहुत ही बड़ी समस्या है मेरे जीवन में, बहुत ही बड़ी बाधाएं है मेरे जीवन में। Now I made a decision in my heart. मैंने मेरे हृदय में एक डिसीजन को रखा है। Now I can do this. मैं एक ये कर सकता हूँ, I can sit मैं बैठ सकता हूँ and cry over it और मैं उसके ऊपर रो and सकता worry हूँ about it और उसके बारे में चिंतित हो सकता हूँ and go into depression. और डिप्रेशन में चले जाऊंगा। If I try to explain to you, it's going to be very difficult. I don't know how to explain to you. अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ही समस्या होंगे, But this is what I've done. लेकिन यही मैंने किया I made a decision and commitment to myself. और मेरे जीवन में एक कमिटमेंट किया मैंने, I'm not going to worry anymore. मैं चिंतित नहीं होऊंगा I'm अभी going to be happy. और मैं खुश रहूंगा, Because this situation, क्योंकि ये जो परिस्थिति है I'm not able to change it. मैं बदल नहीं सकता हूँ। And so every day I go to God तो मैं हर दिन परमेश्वर के पास जाता हूँ and say, Lord, और मैं कहता हूँ प्रभु, you know this situation और that आपको I'm going पता है, through. आपको पता है ये परिस्थिति के बारे में, I really don't know how to pray about मुझे it. नहीं मालूम प्रभु जी मैं कैसे प्रार्थना करूँ। Please, you take care of it. प्रभु जी आप इसको टेक केयर करिए। And that is what every day I tell. This much only. I don't pray more और यही मैं प्रार्थना about this करता हूँ, particular situation. ये इसके ऊपर मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ, About this particular situation, और इसके जो परिस्थिति के ऊपर I'm just telling God, मैं केवल परमेश्वर से कह रहा हूँ, I don't know what to do. प्रभु मुझे पता नहीं क्या करूँ मैं, Lord, you take care of the आप situation. हैंडल करिए प्रभु जी इस सिचुएशन के ऊपर। I know you are better than me to handle this और matter. मुझे पता है प्रभु जी आप मेरे से भी ज्यादा बेहतर हैं, Every day I get up. और हर दिन मैं उठता हूँ Don't worry, be happy. और चिंतित होने की जरूरत नहीं, लेकिन खुश रहो। I'm not sad. मैं दुखी नहीं हूँ, I'm not sorrowful. मैं शोकित नहीं हूँ, I made a strong commitment to myself. लेकिन मेरे हृदय में मैंने डिसीजन लिया है, I'm going to trust in God. मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करूंगा, I'm not going to be worried about it. मैं चिंतित नहीं होऊंगा उसके बारे में। So when I don't know how to pray, जब मुझे नहीं मालूम होता कैसे प्रार्थना करूं, when I don't know what to do, और मुझे नहीं मालूम जब मैं क्या करूं, Bible says in Romans chapter 8, परमेश्वर की वचन बताती है रोमियो के पत्र 8 में, the Holy Spirit prays on behalf of you. पवित्र आत्मा आपके जगह में प्रार्थना करता है। Amen. आमेन। My dear friend, you need to understand, मेरे प्रिय आपको समझना है, when you don't know how to pray जब आपको पता नहीं रहता कैसे प्रार्थना करना about है a particular situation, उस परिस्थिति के बारे में, and you don't know how to deal with it, और आपको मालूम नहीं कैसे आप उसको करेंगे, you just leave it to the Lord, आपके परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, and the Holy Spirit will pray for you. और पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करेगा। That comforts me, और वो मुझे बहुत ही that the शांति Holy देता है Spirit is praying on behalf कि of me. पवित्र आत्मा मेरे यहाँ पे प्रार्थना करता है। And I know when that moment comes, और मुझे मालूम है जब वो समय आ जाता है, God will make something out of it. और परमेश्वर कुछ चीजों को बनाएगा, I don't have to worry और about it. मुझे उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं If है। I worry, अगर मैं चिंतित होता हूँ I can go into depression right now. और मैं डिप्रेशन में चले जा सकता But हूँ, I'm not going to allow that to happen. लेकिन मैं उस चीजों को अनुमति नहीं दूंगा मेरे जीवन My में के God लिए। is greater than the problems. मेरे जो परमेश्वर प्रॉब्लम से भी ज्यादा महान है, So I'm going to pray, तो मैं प्रार्थना करूंगा pour out my heart, और मेरे हृदय को डाल दूंगा and यीशु the मसीह में। Bible says give thanks. और परमेश्वर की वचन कहता है कि आप धन्यवाद दो, Thanksgiving. और धन्यवाद देना
Lord, I give you thanks प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता because you हूँ are trying to teach me something through this thing. क्योंकि ये सिचुएशन के द्वारा मुझे आप कुछ सिखाना चाहते हैं. I'm giving you thanks मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ because you're going to get me out of this problem. क्योंकि ये समस्याओं से मुझे आप निकालने वाले हो You're going to give me victory over this और आप problem. मुझे समस्याओं से ऊपर मुझे विजेता देने वाले हो. So I'm going to give you thanks, O तो मैं Lord. आपको धन्यवाद दूंगा प्रभु जी. So the Bible says, don't worry, be happy. तो परमेश्वर के वचन कहता है आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, खुश रहो. Dear friend, overcoming depression is not popping pills in your mouth. मेरे प्रिय जो डिप्रेशन जो है वो ऐसा चीज नहीं जहाँ पे आप अपने मुंह में लेते हैं. I'm not saying don't take your tablets if the doctor has given. मैंने कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर ने आपको दवा दिया उसको मत लो. That is between you and God. वो आपके ऊपर है और परमेश्वर के बीच में है. Don't go home and say, Pastor told me to throw the medicines out. घर में जाके ये मत कहो कि पास्टर ने मुझे कहा दवा को फेंक दो. That's between you and God. वो आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में But है. I can say you this. लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूँ We have allowed ourselves to go in so deep. हमने अपने आप को अनुमति दिया अंदर जाने के And लिए. that's the reason why you are taking these stretches on your life. और इसीलिए आपके जीवन में जो समस्याएं हैं Be careful for nothing. कुछ चीजों के ऊपर आप चिंतित मत होइए. Go to God परमेश्वर के पास जाइए and tell God, और प्रभु से कहिए Lord, why should I worry प्रभु मैं क्यों चिंतित होऊंगा when you are with me? जब आप मेरे साथ हैं. Lord, I don't know how to pray मुझे पता नहीं प्रभु जी मैं कैसे प्रार्थना on करूं this situation, ये समस्याओं के ऊपर. but I'm going to find peace and joy and happiness in you. लेकिन मुझे आपके ऊपर शांति और आनंद को मिलेगा प्रभु जी. Lord, this is my problem. प्रभु जी ये मेरी समस्याएं हैं. Hereafter, it is your problem. यहाँ के बाद आपका ये समस्या है प्रभु जी. It is no more my problem ये now. मेरी समस्या नहीं है अभी. I'm going to cast my problem upon मेरी you. समस्याओं के मैं आपके ऊपर फेंक दूंगा प्रभु And जी. I'm thankful. और मैं धन्यवाद हूँ. I give you thanks मैं आपको धन्यवाद देता हूँ that you're going to help me out to come victorious in this. और आप मुझे मदद करेंगे मुझे विजय प्राप्त करने के That लिए. is what the Bible और वही says. परमेश्वर की वचन कहता है When you don't do this, जब आप वो नहीं करते हैं you go through आप depression. डिप्रेशन में चले जाएंगे. And you know what the Bible says? और आपको पता है परमेश्वर की वचन क्या कहता है When these decisions you make, जब एक ऐसा डिसीजन जब आप बनाते हैं that you are going to not be worried but be happy. आप चिंतित नहीं होंगे लेकिन खुशी होंगे. And you pray to God और आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे and give thanks to Him और प्रभु को आप धन्यवाद देंगे and pour out your heart to God. और आपके हृदय को आप डाल देंगे परमेश्वर में. Because you cannot change the क्योंकि situation. इस परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते हैं. And so you put it in God's hand. और आप परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए And you give thanks to और God परमेश्वर को आप धन्यवाद and दीजिए say, God, और कहिए प्रभु I cannot, मैं नहीं कर सकता हूँ but you can. लेकिन आप कर सकते हैं. That's all, dear friend. और वही आपको करना है. Not pills can change it. दवाएं आपके जीवन को बदल नहीं सकती है. Drugs don't change it. ड्रग्स आपके जीवन को बदल नहीं सकता Alcohol है. don't change it. दारू आपके जीवन को बदल नहीं सकता है. They all destroy your life. केवल आपके जीवन को नष्ट कर देगा. The Bible says if you do verse number 6, परमेश्वर के वचन कहता है अगर आप करते हैं छठवां verse वचन में number 7, 7वां वचन में 7 is the number of God. जो 7 नंबर है वो परमेश्वर का It's नंबर the है number of perfection. और वो शुद्ध का एक नंबर है. And I'm going to finish it over here. और यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा. The Bible says, परमेश्वर के वचन कहता है when you जब आप are not careful of anything, कुछ चीजों के बारे में आप केयरफुल नहीं होते हैं you pray to God आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए and you pour your heart to और Him आपके हृदय को परमेश्वर में डाल दीजिए and you give thanks to Him. और आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए. The Bible says the peace of God, परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर की जो शांति है which passeth all understanding, और हमारे सोच विचार पे वो चले जाता which है. be like, I don't know how this happened, but God did it. मुझे नहीं मालूम कि कैसा हो लेकिन परमेश्वर ने किया है. I don't know how I overcame, but God did it. मुझे नहीं मालूम कैसे मुझे विजय प्राप्त हुआ लेकिन परमेश्वर ने किया है. The Bible says the moment you make verse 6 as your principles for depression, तो छठवां वचन के द्वारा अगर आप करते हैं verse 7 is your answer for all your तो problems. 7वां वचन है आपकी जो समस्याओं का उत्तर है. The Bible says immediately the peace of God. परमेश्वर के वचन कहता है जो तुरंत परमेश्वर की जो शांति. Honestly, dear friend, you really don't know what I'm going through. मुझे आप शायद आपको नहीं मालूम कि मैं किस प्रकार से जा रहा हूँ इस समय. You really don't know how you're going to deal with the situation that I might be going through. आपको नहीं मालूम होगा शायद मैं जो परिस्थिति में जा रहा हूँ आपको पता नहीं रहेगा. But I can tell you this. लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूँ I have great peace in my heart right now. मेरे हृदय में बहुत ही बड़ी शांति है. Because I'm not carrying that burden in my life. क्योंकि बोझ को मैं उठा नहीं रहा हूँ इस समय. I cast the burden upon the Lord. उस समस्याओं को मैं परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है. The Bible says the peace of God, परमेश्वर के वचन कहता है परमेश्वर की शांति which passeth all understanding, जो सारे समझ पर है shall keep your hearts तुम्हारे हृदय को and minds और तुम्हारे विचारों को through Christ Jesus. मसीह यीशु मसीह के द्वारा. Depressions come because the devil wants to take you deep in sorrow. जो डिप्रेशन इसीलिए आते हैं क्योंकि शैतान चाहता है कि ताकि आप दुख में अंदर चले जाएं. But verse number 6 says, लेकिन छठवां वचन कहता है don't worry, be happy. चिंतित मत होइए लेकिन आनंदित रहो.
Pray to God परमेश्वर से प्रार्थना करो and give Him thanks. और उसको धन्यवाद दो। When you do that, जब आप ये करते हैं God's peace will come upon you. परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आएंगे, You'll be peaceful. आप शांति होंगे। He takes care of your mind आपकी दिमाग को वो शांत रखता है and your heart. आपके हृदय को भी रखता है। Depression comes when your mind and heart is sold to the devil's thoughts. डिप्रेशन तभी आते हैं जब आपकी हृदय आपके मन शैतान की ओर जाता है। But when you commit your mind and your heart to the hand of God, लेकिन जब आपके जीवन को आप समर्पित करते हैं यीशु मसीह के हाथ में, peace of God comes upon you. परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, the Bible says in 1 Peter chapter 5 verse 7, परमेश्वर की वचन कहता है पहला पत्रस 5:7 में, cast your care upon the Lord, तुम्हारी जो समस्या है उसको यीशु मसीह में डाल दो, for He careth for कि you. वो तुम्हारे लिए चिंता करता है। So don't beat yourself for anything and everything. तो कुछ चीजों के लिए आप खुद को वो मत ठोकिए। Don't expect the world to appreciate you all the time. ऐसा आशा मत रखिए कि लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा कहेंगे। Sometimes go in front of the mirror and appreciate your own self और कुछ समय आप आईने के पास जाकर खुद को अच्छा अच्छा कहिए and say, I thank God और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को that I am the child of कि God, मैं परमेश्वर की संतान हूँ that He saved me और उसने मुझे बचाया है and He made me His child. और उसने मुझे अपना संतान बनाया He है takes care of my life. और वो मेरे जीवन का रखवाली करता है I am going to be in the peace of और God. मैं परमेश्वर की शांति में रहूंगा। Look how beautiful I look. देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, Look how handsome I देखो am. मैं कितना हैंडसम हूँ। Just look at yourself in the mirror आईने में देख आप कहिए, after putting makeup. मेकअप डालने I'm के just बाद joking. I'm just joking. Just look at yourself in the और mirror आपको खुद को आईने में देखिए without or with. और बिना मेकअप के या फिर मेकअप से भी, But look at your mirror and speak to yourself लेकिन आईने में देख के आप खुद से कहिए, and say, you look so good. आप देखो आप कितना अच्छा दिखते हो। You don't have to worry. आपको चिंतित होने की जरूरत You are नहीं the है best in this world. और आप संसार में सबसे अद्भुत है And that's what the Bible says. और वही परमेश्वर की वचन कहता है। David was sorrowful, जो दाऊद था वो बहुत ही दुखी था, but then he gets up लेकिन वो उठकर and he says, और वो कहता है, why art thou cast down, O my soul? क्यों मेरे जो हृदय है वो तुम्हें Why डाला art thou गया अंदर, disquieted within क्यों me? तुम बहुत दुखी हो। Hope thou in God. आप परमेश्वर के ऊपर आशा रखो। The Bible says, परमेश्वर की वचन कहता है David encouraged himself in the Lord. दाऊद ने खुद को परमेश्वर में उत्साहित किया है। If nobody is appreciating you, अगर कोई आपको धन्यवाद नहीं दे रहे, appreciate yourself. खुद के बारे में आप अच्छा अच्छा कहिए। Amen. आमीन। Don't depend upon the world to appreciate संसार you. के ऊपर आप भरोसा मत रखिए, Don't please the world. संसार को प्रसन्नित मत Don't करिए। worry what they will say. आप चिंतित मत होइए कि उन लोग क्या कहेंगे मेरे बारे Don't में, worry what they will think. उन लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। Such kinds can dip you down. वो इस सब चीजें आपको अंदर डाल देगा, But rather say, लेकिन वो कहता है I'm the child of God. आपको कहना कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, God thinks good about me. परमेश्वर मेरे बारे में अच्छा सोचते I हैं, don't have to worry about the world. मुझे संसार के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं I'm है। just going to please the मैं Lord. केवल परमेश्वर को प्रसन्नित करूंगा I give Him all the glory. और मैं उसको सारा आदर महिमा देता हूँ। Honestly, dear friends, मेरे प्रियो, this is the simple peel. और ये जो सिंपल सा एक साधारण सा चीज है That's the gospel. जो है परमेश्वर की शुभ समाचार, It's the gospel और उस परमेश्वर की शुभ समाचार है that changes our और life. जो आपके जीवन को बदल देता है। The word of God. परमेश्वर की वचन, Read it, इसको आप पढ़िए study it, और स्टडी करिए carry it. और हमेशा रखिए आपके हाथ Above में, all, और उससे भी अधिक let the word of God carry your life. और परमेश्वर की वचन आपके जीवन को कैरी करने के लिए दीजिए। When you do what God's word says, जब आप करते हैं जो परमेश्वर की वचन कहता है, these simple matters, वो जो साधारण है, sorrow has no power over you, जो दुखी है, दुख है, आपके जीवन में कोई जगह नहीं है, but rather you have power over the sorrow. लेकिन आपके पास सामर्थ है दुख के ऊपर। Amen. आमीन। These simple matters will help you face life with joy and smile. जो ये साधारण चीज है आपके जीवन में खुशियां लेके आएंगे, आनंद लेके आएंगे। Recently, I was able to meet somebody. कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मैं मिल पाया The person was very sorrowful और वो व्यक्ति बहुत ही दुखी था and very angry, और बहुत ही गुस्से में था and something was really, really bad in their life. और उन लोगों के जीवन में कुछ बहुत ही खराब चीज हो रहे थे Things were not going on well, और चीजें अच्छे से नहीं हो रहे थे and I was able to go and visit that और person. मैं वहां पे जाकर मैं उन लोगों से मिल पाया And when I went and visited that person, और जब मैं जाकर उस व्यक्ति से मिला I saw the sorrow, और मैंने देखा उसकी दुख को I saw the tension. और उसकी टेंशन को मैंने देखा I didn't go there and give suggestions and advice. और मैं वहां पे जाकर सजेशन एडवाइस नहीं दिया I went and sat with that person और उस व्यक्ति के साथ मैंने जाकर बैठा and just sat. और मैंने बस बैठा वहां पे। In my heart, I was praying to God, मेरे हृदय में प्रार्थना कर रहा था and परमेश्वर I से just sat और मैंने बस वहां पे बैठा and I waited for that person to talk to me. और मैंने अपेक्षा किया उस व्यक्ति को बात करने के लिए। You see, sometimes when people have problem, we become doctors, और जब लोगों के जीवन में समस्या आते हैं हम क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं हम। right?
है कि नहीं? If somebody says, "Pav dukta baba," अगर कोई कहते हैं मेरा घुटना दुख रहा है, my leg is hurting, मेरे जो घुटना है वो दर्द हो रहा है, immediately we become doctors. और उसमें हम क्या बन जाते हैं? डॉक्टर बन जाते हैं हम। Udi garam garam korun shake ge. और पानी गर्म करके वो शेक करो तुम, Right? We become doctors. Everybody. हम डॉक्टर बन जाते हैं तुरंत। No, when people are in sorrowful, don't try to give advice unless they ask for you. जब लोग दुखी में रहते हैं, आप जब तक उन लोग ना मांगे, आप उन लोग को एडवाइस मत दीजिए। Sometimes just sitting next to them quietly and praying in your heart will help them very much. कभी कभी क्या होते हैं, हम अगर उन लोग के साथ बैठकर अगर हम अंदर में प्रार्थना करेंगे, वो बहुत ही उन लोग के मददगार होंगे। And I just said, और मैं वहां बस बैठा, the person was not wanting to talk. और जो वो व्यक्ति था वो मुझे नहीं चाह रहा कि मैं बातचीत करूं। Then I said, I'll come next time. और मैंने कहा कि मैं दूसरी टाइम आऊंगा। The next day I went और दूसरा दिन में मैंने गया and I spoke. और मैंने बातचीत किया, That person spoke. और वो व्यक्ति भी बातचीत किया, The person opened up और to me. चीजों को उसने खुलेआम कर दिया। And I began, because that person opened up, क्योंकि वो व्यक्ति ने बता दिया, I began to speak to that और person. मैंने भी उस व्यक्ति से बातचीत करना शुरू किया। And as I began to speak to that person, जैसे मैंने शुरुआत करी, I began to see the sorrow leaving that face. मैंने देखा कि जो उसके चेहरे में जो दुख था वो धीरे धीरे छूटने लगा, I saw the freshness coming upon that और मैं person. देखा जो उसके जीवन में फ्रेशनेस को I saw the peace of God coming upon that मैंने person. परमेश्वर की शांति को आते हुए देखा। And that person said, और वो व्यक्ति कहा, you know, Thursday you come to our home. देखो गुरुवार को आप मेरे घर में आए थे, Come to my home मेरे घर में आओ, with your family. आपके परिवार के साथ आइए। So Thursday I went with my family. गुरुवार को हमने गया परिवार के साथ, The person who was very sorrowful और जो व्यक्ति बहुत ही दुखी था, on Thursday जो गुरुवार के दिन prepared the best meal for us. सबसे अच्छा खाना हमारे लिए बनाया, There were like 10 to 12 different dishes. और अलग अलग प्रकार के 10-12 प्रकार के खाना बनाया। God can make that happen. परमेश्वर उस चीज को बना सकते हैं। Pills don't do it. जो चीजें हैं वो आपको नहीं कर सकता है, Alcohols don't do जो it. दारू है वो बना नहीं सकता है, Drugs don't do it. जो ड्रग्स है वो भी कर नहीं सकता है, But God can do it. लेकिन परमेश्वर कर सकता है। Sometimes just be quiet and pray for them और कुछ समय में हमें बस शांत रहकर हमें प्रार्थना करना है, and let them know that you care for them और उन लोगों को जाने दो कि हम उसके बारे में चिंतित होते हैं, and give them hope from the word of और God. परमेश्वर की वजह से उनको आशा दीजिए, And God is able to bring his peace upon them. और परमेश्वर उसकी शांति को उनके जीवन में दे सकते हैं। Don't let depression become your God. डिप्रेशन को आपकी परमेश्वर होने मत दीजिए। God is bigger than depression. परमेश्वर डिप्रेशन से भी ज्यादा अद्भुत है, God is bigger than problem. परमेश्वर समस्याओं से भी ज्यादा अद्भुत है। Amen. आमीन। And I want you to know these things. और मैं चाहता हूँ कि आप जाने ये चीजों को, Keep that in heart आपके हृदय में रखिए, and say, you know what? और आप कहिए, देखो The Bible tells me परमेश्वर की वचन कहता है that I don't have to worry about मुझे anything. चिंतित होने की जरूरत नहीं किसी बात That की I'm भी, going to, Bible tells me I need to be happy. और परमेश्वर की वचन कहता है कि मुझे खुश होने की जरूरत And है। I'm going to pour out my heart to the मेरे Lord हृदय को मैं परमेश्वर में रखूंगा in prayer, और प्रार्थना में, and I'm going to give thanks to और मैं God. परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। And if I do that, अगर मैं ये करता हूँ, the Bible says परमेश्वर की वचन कहता है the peace of God परमेश्वर की शांति will come upon you. हमारे ऊपर आएंगे, That's the simple truth और वो सबसे अच्छा और साधारण सच्चाई है that will give you victory, dear जो आपको friends. विजय देगा। And may the Lord bless you. और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। My prayer is none of you in this place will allow problem to become your God. मेरी प्रार्थना ये होगा कि कोई भी यहाँ पे ताकि समस्याओं को ताकि अनुमति ना दे आपके जीवन में, But when problems come, लेकिन जब समस्याएं आती हैं आपके जीवन में, you tell the problem, आप समस्या को कहो, God is bigger than you. परमेश्वर आपसे भी ज्यादा महान है, God is bigger than the problem. परमेश्वर आपसे भी ज्यादा अद्भुत है। Amen. आमीन। My God मेरे परमेश्वर is bigger इस अद्भुत है than my problem. मेरी समस्याओं से भी, Face everything. हमेशा कर सकते हैं वो सब। Don't worry about your past. चीजों के बारे में आप, अतीत के बारे में आप चिंतित मत होइए। Oh, what about my past? मेरी जो अतीत है वो उसके बारे में क्या है? You came to Christ, आप परमेश्वर में आया God took his blood और परमेश्वर ने लहू को लिया and wiped away your और past. आपके हर एक लहू को, आपके अतीत को धो डाला And he made it whiter than snow. और आपको बर्फ से भी ज्यादा सफेद बनाया। Hallelujah. हालेलुया। Don't worry about the past. आपको अतीत के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, Don't worry about the future. और भविष्य के बारे में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, You have not seen your future, और आपने भविष्य को नहीं देखा है, but God has seen your लेकिन future. परमेश्वर ने आपके भविष्य को देखा है, And God has made your future beautiful in His और time. परमेश्वर ने आपके जीवन की जो भविष्य वो बहुत अच्छा बनाया है। Don't worry about your present. आपको इस समय की परिस्थिति के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा, Lo, I am with you always. देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, Your father and mother will forsake you, तुम्हारे माँ बाप
तुम्हें त्यागेंगे, but I will never forsake you. लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। Don't worry about your past. आपके अतीत के बारे में चिंतित मत होइए, It is washed away. ये धो डाल चुका है यीशु Don't मसीह worry ने। about your future. भविष्य के बारे में मत सोचिए, God is preparing beautiful things for you. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही अच्छा चीजों को प्रिपेयर कर रहा है। Don't worry about the present. अभी के लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है, He'll never forsake वो you. आपको कभी भी नहीं त्यागेंगे। No matter who forsakes you, कोई भी आपको त्याग सकते हैं, but God will never forsake लेकिन you. परमेश्वर आपको कभी भी नहीं त्यागेंगे। Amen. आमीन। Shall we pray? इस समय हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, we thank you हम आपको धन्यवाद देते हैं for this beautiful morning, O God. इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी आपको We धन्यवाद। thank you that we could come into your presence और हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके शरणों में इस समय हम आ सकते हैं, and we could praise your name और हम आपको महिमा दे सकते and we हैं, could give you thanks और आपको धन्यवाद दे सकते and हैं, we could glorify your और आपको name. महिमा दे सकते हैं प्रभु जी। Thank you for speaking to us through हमें your हमसे words. बात करने के लिए पिता आपको धन्यवाद प्रभु Oh जी। God of heaven, हाँ स्वर्गीय पिता, help us to rejoice in you हमें मदद करता कि आप में हम and तक never आनंद to में be सकें, worried about और कभी anything, तक चिंतित ना हो सके, because nothing happens in our life क्योंकि कोई भी चीज नहीं होते हमारे जीवन में without your purpose and plan. आपके बिना इच्छा के प्रभु जी। We thank you, हम Lord, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी that you are our God, कि आप हमारे परमेश्वर हैं, you are our Savior, आप हमारे उद्धार करता है, and you are everything to और आप us. हमारे लिए सब कुछ है प्रभु जी, And we can run to you और now हम आपके ऊपर हम जा सकते हैं प्रभु जी पिता, and thank you और आपके पास आकर हम धन्यवाद दे सकते हैं, for your control over our life. आपके कंट्रोल करें हमारे जीवन में प्रभु जी। Oh God, we thank you for the peace that you have given us. शांति के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया उसके लिए धन्यवाद। Bless us, Lord. हमें आशीष करिए प्रभु जी। Bless everyone over here. यहाँ पे जितने सारे हैं प्रभु हर एक If there को is आशीष करिए। anybody sick, अगर कोई यहाँ पे बीमार है प्रभु जी, Lord, heal them, oh उन लोगों को God. आप चंगाई दे परमेश्वर पिता, Put an edge of protection around everybody right now. उनके चारों पिता रक्षा बना के रखे प्रभु All जी। our church members हमारे हर एक कलीसिया मेंबर present over here right जहाँ now. पे इस समय मौजूद है प्रभु जी, Everybody watching online, जो कोई हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु put an जी, edge of protection around उन लोगों them. को रक्षा करके रखे प्रभु Not जी, one of them will come under the context of the coronavirus, oh ताकि God. किसी के जीवन में कोरोना वायरस ना आ सके प्रभु जी, And oh Lord, the whole village here, oh ताकि God. यहाँ पे पूरे जो गांव है प्रभु जी, Everybody will be protected by your blood. ताकि आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, ताकि सभी That लोग none of सामर्थ them will come under the contact of ताकि coronavirus. कोई किसी के जीवन में ताकि कोरोना वायरस ना आ सके प्रभु Oh जी। God, we pray for those who are in need of finance, हम प्रार्थना करते हैं जिसका जरूरत है प्रभु जी, आर्थिक समस्या है प्रभु जी, that you'll provide their needs. उन लोगों की जरूरत को पूरा करे प्रभु जी, Bless their family. उन लोगों के परिवार को आशीष करे प्रभु Bless जी, their marriage. उन लोगों के शादीशुदा जीवन को Bless the आशीष करे, children. बच्चों को आशीष करे प्रभु Bless जी, their education. उन लोगों के पढ़ाई लिखाई को आशीष Bless करे their प्रभु जी, careers. उन लोगों के करियर को आशीष करे Help प्रभु them जी, in making decisions. उन लोगों के जीवन में डिसीजन लेने के लिए मदद करे प्रभु जी, Oh God, help them to overcome प्रभु जी उन लोगों को विजय प्राप्त करने के लिए मदद करे प्रभु जी, every problems. हर एक समस्याओं के ऊपर। And thank you for your peace. आपकी शांति के लिए पिता हमको धन्यवाद Thank you देते for हैं, your strength. आपकी सामर्थ के लिए आपको धन्यवाद प्रभु We जी। love you, Lord, हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर because पिता, you love us. क्योंकि आपने हमें प्यार किया प्रभु जी। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen आमीन and amen. आमीन। Let's all say once again, don't worry, be happy. Amen. Hallelujah.